everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video, and today I'm going to teach you from the chapter Biomolecules, and it is the chapter number 9 of standard 11th. So first of all, you should know what is biomolecule. Biomolecule, these are the chemicals present, or you can say functional, in living organism. So all the chemicals which are functional in living organism is known as biomolecule. And you will see that these biomolecules are present in cells, tissue, organism. So we can say that कि जितनी भी बॉडी में चीजें हैं, आप सेल से स्टार्ट करें तो सेल हो गया, टिश्यूज हो गए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. एवरीथिंग इज हैविंग बायोमोलिक्यूल. Now, when we talk about these biomolecules, so as you know that there are different varieties of organisms, different variety of cells you will see, different variety of tissues you will see. So, do all these tissues, cells, organisms are made up of same kind of biomolecule? So, after the elemental analysis, of these all tissues, cells, different organisms has shown that all these biomolecules are basically primarily made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. So ज़्यादा अमाउंट में जो प्राइमरी कंपोनेंट्स है, जो प्राइमरी एलिमेंट्स है बायोमोलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वो ये ही चारों हैं. एंड इसके अलावा इनसे थोड़े कम अमाउंट में आपको सल्फर एंड फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है. एंड अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो देयर, बट मेजॉरिटी इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो इट इज क्लियर कि जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में ये बायोमोलिक्यूल्स है, और सब बायोमोलिक्यूल्स में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल. जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर पूल. ये एक और टर्म है, यू विल कम अक्रॉस इट. सेल्यूलर पूल मतलब क्या होता है? सेल्यूलर पूल, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेल. एक सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन सबके कॉम्बिनेशन को हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं. दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स. नेक्स्ट, these biomolecules are of two types. One is organic biomolecule and other is inorganic biomolecule. Organic means inorganic. Fine. Organic means a compound in which carbon and hydrogen present together. सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अगर आपको किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन साथ में देखने को मिलेंगे, वो आपके लिए क्या है? दैट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. एंड दे आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल. ये जो बायोमोलिक्यूल है ये कॉम्प्लेक्स है. आप जानते हैं इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से. दैट इज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, etc. So these molecules are the organic molecule. क्योंकि अगर मैं आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल बोलूं, उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12
O6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन साथ में है। नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक? दे आर सिंपलर मॉलिक्यूल like water, vitamins, minerals. They are the inorganic simpler molecule. इस केस में अगर आप वाटर की बात करते हैं तो in one cell you will see that cell is made up of 65 to 80% water. 65 to 70% water. Cellular pool, sum total of all biomolecules present in a cell. It is of two types, organic and inorganic. Inorganic is the simpler biomolecules in which you can consider water, vitamins, minerals, salts. If I write, suppose for example I am writing this. If I am writing SO4 2 minus, NO3 minus, NH4. So here you can see no carbon hydrogen is there. Here no carbon hydrogen is there. Here only hydrogen is there. Here in this case carbon is there. So these all are inorganic biomolecule. You cannot say organic. Why? Because for putting it in the category of organic, अगर आपको किसी भी बायोमोलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में डालना है, उसके लिए उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन को साथ में रखना होगा। सो इन सब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है, दोनों साथ में नहीं है। Whereas in glucose you can see both carbon as well as hydrogen together. So this is organic and these all are inorganic. So inorganic में water, vitamin, minerals and salts को हम consider करते हैं। If I talk about mineral, I'm writing here. If I talk about mineral, so जब हम minerals की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि plants के केस में there are 17 essential minerals, whereas in case of animals 24 essential minerals are there. Please remember these numbers are very important. See, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स का जो वेटेज है वो नीट के एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 10% होता है। मींस इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये जो 4 क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स हो गए। सो इट इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इससे रिलेटेड हर एक माइन्यूट चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक, जस्ट रिमेंबर दैट एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट अगर आप नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। So please take a screenshot so that I can move on to the next topic. So you can see the next topic is how to analyze chemical composition. मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन से chemicals present होते हैं, but हमने वो analysis कैसे किया है, वो method क्या है, that we have to discuss now. So how to analyze chemical composition? So starting with the process, if we are starting the experiment of analyzing it, first of all you should have any tissue, plant tissue, you can take animal tissue, you can take microbial paste. So first thing which we have to do is we have to take plant or animal tissue, and moreover through this process you are going to see the organic component. Fine. आप इससे organic biomolecules ही पता कर पाएंगे इस process के through. So first you have to take the plant or animal tissue, then make a slurry of it. Means you have to make a paste. For making the paste, अगर आपको कोई भी, अगर आप घर पे चटनी भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको उसमें थोड़ा वाटर तो डालना पड़ेगा। सेम हियर, फॉर मेकिंग द पेस्ट यू नीड टू ऐड
an acid into it, that is trichloroacetic acid. Again very important chemical. It is Cl3COOH. This is the chemical formula of trichloroacetic acid. When you will put it, you will make a paste. Then you will get a thick slurry. Then you need to filter that. एंड फिल्टर करने के लिए आपको चीज क्लोथ या आपको कॉटन क्लोथ की जरूरत पड़ेगी. आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले और उसको छानना है, आपको फिल्टर करना है हमको. जब आप फिल्टर करेंगे देन यू विल गेट 2 पोर्शंस. ठीक है, एक पोर्शन जो नीचे, लेट मी ड्रॉ इट. दिस इज द टेस्ट ट्यूब. आपने क्या किया, यहां से इसको फिल्टर कर लिया. फिल्टर करने के बाद यहां पे एक लिक्विड फॉर्म में आएगा एंड इसमें फिल्टर में यहां पे कुछ सॉलिड पोर्शन रह जाएगा. दिस इज द फिल्ट्रेट एंड filtrate can also be called acid soluble pool. क्योंकि आपने जो एसिड डाला उसमें सेल के कुछ कंपोनेंट डिसॉल्व हो गए हैं एंड दे विल कम इन दिस पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. हियर इन द चीज क्लॉथ और द कॉटन क्लॉथ यू विल फाइंड द सॉलिड मटेरियल ऑफ द सेल दैट विल बी कॉल्ड एज रिटेंटेट. आप उसको रिटेंटेट बोल सकते हैं. सो दीज आर द 2 पोर्शन. वन इज एसिड सॉल्युबल पूल एंड अदर इज एसिड इनसॉल्युबल पूल. इसको एसिड सॉल्युबल पूल को यू कैन कॉल फिल्ट्रेट एंड आप एसिड इनसॉल्युबल पूल को रिटेंटेट बोल सकते हैं. Now let's talk about the characteristics. एसिड सॉल्युबल पूल में जो भी केमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स आए हैं दोज विल बी माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो वेट होता है लेस देन 1000 डेल्टन. 1000 डेल्टन से इसका जो वेट होता है वो कम होता है. Here you will see मैक्रोमोलिक्यूल एंड इसका वेट जो होगा मोर देन 1000 डेल्टन. ठीक है, नेक्स्ट, ये जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो भी केमिकल्स आए हैं दे विल बी ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. साइटोप्लाज्म में जो भी केमिकल्स है वो केमिकल जो है इस पोर्शन में आएंगे एंड वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे और उनका जो वेट है वो 1000 डेल्टन से कम होगा. यहाँ पे जो भी चीज फिल्टर हो रही है वो बिलोंग करती है साइटोप्लाज्म को भी प्लस ऑर्गेनेल्स को भी. ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म के कुछ कंपोनेंट, सारे ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म के कुछ कंपोनेंट जो है वो इस पोर्शन में फिल्टर नहीं होंगे एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल पूल. आपको एसिड सॉल्युबल पूल में अमीनो एसिड्स, अल्कोहल्स ये सब देखने को मिल सकते हैं. एसिड इनसॉल्युबल पूल में you will find these polysaccharide proteins, nucleic acids. These biomolecules you will see in acid insoluble pool. Now problem is that in this process there is a big question for lipid. लिपिड का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है बिकॉज लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज अराउंड 800 डेल्टन. ठीक है,
इसका वेट 800 डेल्टन है और वो 800 डेल्टन जो होगा वो यहां फिल्ट्रेट में नहीं देखोगे आप. यू विल ऑब्जर्व दैट दिस विल बी प्रेजेंट हियर इन केस ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पूल. आपको इनसॉल्युबल पूल में लिपिड देखने को मिलता है. द रीजन इज व्हेन वी आर मेकिंग द पेस्ट, दैट टाइम यू विल सी दैट जो लिपिड होता है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में? वो मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो जब हम पेस्ट बना रहे होते हैं दैट टाइम these lipid will be enclosed in the vesicles. ठीक है. एंड ये जो वेसिकल्स होते हैं, लिपिड विल बी enclosed in vesicles and vesicles are insoluble in water. ठीक है. वाटर में वो इनसॉल्युबल होता है. तो जो एसिड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट एसिड इज डाइल्यूट. It means what? That acid is having water in it. So when you are making the paste, these vesicles will not be soluble in that acid, that water content of the acid, and that will be filtered over here. ठीक है. तो जो vesicles है वो एसिड में जो वाटर कंपोनेंट है उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, उसकी वजह से वो यहाँ पे फिल्ट्रेट में आ जाएंगे. But remember that lipid is having this much of weight and you have to consider this because of its molecular weight. It is a micromolecule. Clear with this? This is a micromolecule. Now, through this process, we have analyzed the organic component. This is, I have told you this process in very short. अगर आप देखने चाहोगे केमिकल लैब में जहां पे ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो अभी हमने सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज किया है, उनको एक्सट्रैक्ट किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कि कैसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी एनालाइज करें. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एनालिसिस. Here we are going to analyze the inorganic compounds. So what is the method? The method is take same way how we initiate with the organic one. Take tissue. It can belong to plants, animals, or any organism. Okay, so you have to take the tissue. Second step, you have to dry it. आपको उसको ड्राई करना है so that water content should evaporate. इसका जो water content है वो evaporate हो जाना चाहिए. Next, burn. That tissue will be burned. बर्न करने से what will happen? All carbon compounds will oxidize in form of CO2 and water vapor. तो जितना भी उसमें कार्बन कंपाउंड होगा वो CO2 एंड वाटर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा. सो दिस रिमेनिंग एश विल हैव इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा ऑब्वियसली, एंड inorganic compound like sulfate, phosphate. ठीक है. सो इस तरीके से हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. In this chapter we have learned till now what we have learned in introduction is
how to analyze organic compounds, how to analyze inorganic compounds. How many type of biomolecules are there? Inorganic and organic. Inorganic क्या होता है? जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन साथ में नहीं होते हैं, जैसे मिनरल है, विटामिन है, वाटर है, सॉल्ट है, तो वो सब इनऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन साथ में होते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी जगह पे आप सबको उन सबको you will consider all those as a organic compounds. Then I have given you an idea that all the tissues, whether it is in plant, it is present in animals, they have all the similar organic and inorganic compounds. Proportion composition थोड़ा vary करता है. Basic primary components are equal, same in all living organisms. So this is all about today's lecture, today's video. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning and be safe.